اور صنعت کاروں کو مشکلات نے آن گھیرا۔ پہلے گیس مہنگی ہوئی، پھر کوئلے کی دام بڑھ گئے، مجبوراً فیکٹریوں میں تکا جلانے لگے تو وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ انڈسٹری کے لیے گیس اور کوئلہ کے دام بڑھے تو صنعت کار مجبوراً بطور ایندھن تکا جلانے لگے، جس کے بعد تکے کی قیمتوں میں فی من 50 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تکے کی ڈیمانڈ کے ساتھ اب اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ سینٹرل چیئرمین ایپٹپما احتشام جاوید کہتے ہیں فیکٹریاں چلائے رکھنا اب ہمارے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انڈسٹری جو اسی حکومت نے آپ نے دیکھا پچھلے سال کتنے اچھے طریقے سے رن کیا، اس انڈسٹری نے پرفارم کیا۔ آج بھی آپ کی ایکسپورٹس ٹھیک ہیں، لیکن جو آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے، جو آپ کی انڈسٹری جو آپ کی ایس ایم ایز بیس انڈسٹری ہے، جو بیک بون ہے آپ کی کسی بھی اکانومی کی، آپ اٹلی کا فارمولا اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں اور دیکھ لیں، اس وقت آپ کی اکانومی کو لے کے جانے والی جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کی کاسٹ بہت بڑھ چکی ہے۔ لوکل انڈسٹری کو چلانا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ احتشام جاوید نے مزید کہا ہر گزرتے دن کے ساتھ انڈسٹری کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ حالات اتنے برے ہیں کہ کئی فیکٹری مالکان دیوالیہ ہونے لگے ہیں۔ ایسے میں واحد سستا ایندھن تکا بھی انتہائی مہنگا کر دیا گیا۔ آپ کے ڈائز کیمیکل کی کاسٹ بڑھ گئی، امپورٹ کے اوپر کے اس کے ڈالرز کی ریٹ کی وجہ سے کوئلہ آپ کا اتنا مہنگا ہو گیا۔ جو بطور ایندھن آپ فیول یوز کرتے تھے، جس میں کارن کاپ تھا، جس کے اندر بگھاس تھی، جس میں دوسری چیزیں تھیں، ان کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ان کے ریٹس آسمان کی طرف پہنچ گئے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ لگانا اس وقت اتنا زیادہ انڈسٹری چلانا مشکل ہو چکا ہے کہ ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے۔ دوسری طرف جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، کپڑے کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ احتشام جاوید نے کہا پیداواری لاگت بڑھتی جا رہی ہے اور مارکیٹ میں کپڑے کی مانگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 140 سے 100 پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت اب بھی زیادہ۔ فیصل آباد کے شہری کہتے ہیں چینی کہیں 120 روپے تو کہیں 160 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ کی بڑھتی قیمت کو کنٹرول کرتے ہوئے حکومت نے ایکس مل ریٹ 40 روپے کم کیا۔ اب 100 روپے ایکس مل ریٹ مقرر ہے، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں چینی کا ریٹ 105 سے 110 روپے تک ہونا چاہیے۔ شہری کہتے ہیں کہیں بھی چینی 110 روپے نہیں مل رہی۔ چینی کوئی سستی نہیں کیجیے، چینی 120 روپے کلو مل رہی ہے، کوئی دکاندار 130 روپے کلو دے رہا ہے۔ ہر دکاندار کا آپ کو اپنا ریٹ ہے، یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ وہی ویسے پاؤڈر والی رلا کے 90 روپے والی دے رہے ہیں دکان والے، کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی چھاپا نہیں مار رہا، کدی کو مت ہے۔ حکومت نے چینی کی قیمت کم کرنے کا اعلان تو کیا مگر چیک اینڈ بیلنس کہیں بھی نہیں ہے۔ شہری کہتے ہیں دکاندار من مرضی کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ حکومت کا چینی کی قیمت کم کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، چینی تو مہنگے داموں ہی مل رہی ہے۔ باوے چک تو اگے 160 روپے ملن دئی آ، 150 روپے 350 روپے کا گھیو کا پیکٹ ملن دیا۔ چینی کوئی سستی نہیں کی گئی، یہ کچھ کرنا چاہیے۔ صبح دے آن کے ادھر چ کھلوتے ہیں، دیہڑی لگتی کوئی نہیں ہے۔ چینی کی قیمت کم تو کر دی گئی مگر دکاندار من مرضی کی قیمت وصول کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مانچسٹر آف پاکستان میں اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 491 پوائنٹس کی حد پر جا پہنچا۔ حد نگاہ بھی کم ہو گئی مگر ماحول دشمن سرگرمیاں رک نہ سکی۔ سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں، شہر میں لگی فیکٹریاں اور بٹے فیصل آباد میں چھائی اسموگ کی بڑی وجہ قرار۔ ماحول دشمن سرگرمیوں کے باعث فیصل آباد پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ سرکار کی کوششیں بھی سود مند ثابت نہ ہو سکیں۔ فضائی آلودگی کی شدت کے سبب ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 491 پوائنٹس ریکارڈ ہوئی۔ چھائی اسموگ سے آنکھوں اور گلے میں جلن کے اثرات مگر ماحول دشمن سرگرمیاں نہ رک سکیں۔ ماہرین صحت کے مطابق شہری ماسک پہنے، کھلے آسمان تلے جانے سے اجتناب کریں۔ اسموگ کے سیزن میں شہریوں کو آگاہی کے لیے مختلف جگہ پہ اویزاں کیے گئے ہیں اپنے بینرز، جن پہ آگاہی کے لیے لوگوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور عوام سے بھی التماس ہے کہ وہ فضائی آلودگی میں خاص طور پہ اپنا خاص خیال کریں، اور اسی طرح گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق فصلوں کی باقیات کو جلانے پر مکمل پابندی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، اور اسی طرح جو بٹا ہیں، جو فیکٹریاں ہیں جو آلودگی کا باعث بنتی ہیں، ان پہ بھی سخت قسم کی انسپیکشن ہو رہی ہے اور ان کے خلاف قانونی اور تادیبی کارروائی کی جائے گی، جن میں ان کو جرمانے کیے جا سکتے ہیں۔ شہر میں چھائی فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے متعلقہ سرکاری ادارے اور عوام مل کر اقدامات اٹھائیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔
लाहौर हाईकोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत की। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने पर अदालत बरहम, स्मोक तदारुक न करने पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तलब कर लिए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि वाटर कमीशन की रिपोर्ट्स और वीडियो सामने है, मसले पर काबू ना पाया गया तो नस्लों को क्या जवाब देंगे। फैसलाबाद में डेंगू के वार रुक न सके, मजीद 9 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल जिला भर में डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 329 हो गई। 221 मरीज अलाइड अस्पताल, 108 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में डेंगू के वार रुक न सके, मजीद 9 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 329 हो गई। ब्यूटी पार्लर और सैलून हेपेटाइटिस बी, सी समेत दीगर बीमारियों का सबब बनने लगे। सीओ हेल्थ का फैसलाबाद के 8,777 रजिस्टर्ड ब्यूटी पार्लर और सैलून को चेक करने का हुक्म, कहा चेकिंग के बाद लाइसेंस दिए जाएंगे। फैसलाबाद में हेपेटाइटिस बी, सी समेत दीगर खून के अमराज के फैलाव की 8% वजह ब्यूटी पार्लर और सैलून हैं। सीईओ हेल्थ ने महकमा सेहत अफसरान को 8,777 रजिस्टर्ड ब्यूटी पार्लर और सैलून को चेक करने के अहकाम जारी कर दिए। डॉक्टर काशिफ कंबो ने मरासला जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और ड्रग इंस्पेक्टर्स ब्यूटी पार्लर और सैलून चेक करें। आज मैंने अपने ऑफिस से एक मरासला जारी किया तमाम टाउन इंचार्जेस और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसरान को तमाम तहसीलों में। उसमें उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो जो ज़िला फैसलाबाद में तकरीबन 9,000 के करीब ब्यूटी सैलून और बार्बर शॉप्स हैं, जिनकी उन्होंने अभी प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग पर्पज़ के लिए, तो उनको पर मंथ 600 एटलीस्ट बार्बर शॉप और सैलून को विज़िट करना है, उनके बारे में रिपोर्ट मुरतब करनी है। हुकूमत की जानब से फैसलाबाद को सी कैटेगरी में शुमार करते हुए माहाना 600 ब्यूटी पार्लर और सैलून चेक करने का हदफ मुकर्रर किया गया। हेपेटाइटिस एक मुजी मर्ज है जो ज़िला फैसलाबाद में काफ़ी उसके केसेस हैं और परसेंटेज ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शन है कि तमाम ब्यूटी सैलून और बार्बर शॉप अपने आप को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवाएंगे, उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उनको लाइसेंस वगैरह जारी किया जाएगा। जो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा उसके खिलाफ कानूनी और तादीबी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी सैलून और बार्बर शॉप बगैर लाइसेंस के उसको काम करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। डॉक्टर काशिफ महमूद का मजीद कहना था चेकिंग के बाद ब्यूटी पार्लर और सैलून को हेपेटाइटिस से पाक सर्टिफिकेट लाइसेंस जारी किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद मास्टर प्लान का अदालत उज़्मा में तलबी का मामला। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मास्टर प्लान का हतमी ड्राफ्ट तलब कर लिया। अवामी शिकायत और तजावीज़ की रोशनी में क्या बेहतरी की गई और मास्टर प्लान कब मुकम्मल होगा, इस मुतालिक आगाह किया जाएगा। अदालत में मास्टर प्लान की तलबी के बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मास्टर प्लान का हतमी ड्राफ्ट तलब कर लिया है। मरासले में कहा गया है कि अवामी शिकायत और तजावीज़ की रोशनी में क्या बेहतरी की गई है, तफसीलात दी जाएं। इसके अलावा मास्टर प्लान की तकमील बारे भी आगाह किया जाए। DGFDA डॉक्टर फैसल अजीम का कहना है कि तजावीज़ की रोशनी में मास्टर प्लान मुकम्मल किया जाएगा। मास्टर प्लान अभी हतमी शक्ल से तो काफ़ी दूर है, फैसलाबाद का मास्टर प्लान हतमी शक्ल से काफ़ी दूर है। अभी तो कंसल्टेशन इसकी फ़ेज़ जो है वो चल रही है। कंसल्टेशन फ़ेज़ में हम लोगों ने जो अभी तक उस्मानीज़ ने काम किया हुआ था, 2017 में काम शुरू किया था उन्होंने। जो भी तक उन्होंने काम किया हुआ था और पहले डिफरेंट सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जो उनको आरा तजावीज़ आती थी और उसके बाद जो उनके पास अपनी कोई नॉलेज है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके पास एक अर्बन प्लानिंग का विजन है। तो और अवामी आरा जो उन्होंने ली डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, सेमिनार्स में, उसके बाद उन्होंने एक स्केच बनाया है। ये स्केच जो है इसको हमने पब्लिक कर दिया कि जी अभी तक जो है उस्मानीज़ जो हैं उन लोगों ने दे हैव मेड अप दिस माइंड कि जी इस तरह से होना चाहिए, उसके ये खदोखाल होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फैसल अजीम कहते हैं मास्टर प्लान की टाइमलाइन के लिए उस्मानी एंड कंपनी को खत लिखा हुआ है, जबकि मास्टर प्लान को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बनाने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
25 करोड़ रुपए से नए सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर का टेंडर देने के लिए नीलामी का अमल मुकम्मल। कॉम्प्लेक्स एसपीसीआईए दफ्तर की जगह तामीर होगा। नए सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर का टेंडर देने के लिए नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। नया सीपीओ कॉम्प्लेक्स एसपीसीआईए दफ्तर की जगह पर तामीर होगा। बिल्डिंग बेसमेंट समेत ट्रिपल स्टोरी पर मुश्तमिल होगी। पंजाब हुकूमत ने हालिया बजट में सीपीओ कॉम्प्लेक्स के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मौसूल हो चुकी। ठेका हैंड ओवर होते ही कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज किया जाएगा। एसपीसीआईए का दफ्तर थाना पीपल्स कॉलोनी के ऊपर फ्लोर में मुंतकिल कर दिया गया। सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर 3 साल में मुकम्मल होगी। सीपीओ कॉम्प्लेक्स में एसएसपी ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान के दफातर भी मुंतकिल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। टीएचक्यू अस्पताल शोरकोट इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, डिजिटल एक्सरे मशीन 4 साल से खराब। इंतजामिया मशीन ठीक करवाने में नाकाम है। मरीज प्राइवेट लेबॉर्टरियों से महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर हो गए। शोरकोट के तहसील अस्पताल की डिजिटल एक्सरे मशीन 4 साल से खराब पड़ी है। इंतजामिया की जानिब से डिजिटल एक्सरे मशीन को ठीक ना करवाया जा सका। एक्सरे मशीन ठीक ना होने से मुतासरा मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इधर अपना मरीज़ लेके आया हूँ तो मुझे इधर आके पता चला कि यहाँ की जो डिजिटल मशीन है ना वो ख़राब है, क्योंकि हमारा बाहर जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इधर वो गरीब आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इधर मुनासिब फ़ीस है। तो इधर आके हम मरीज़ ले आए तो पता चला कि मशीन ख़राब है। हमारा जो है ना आला अफसरान से भी ये अपील है कि इसको मशीन को ठीक करवाया जाए, और इधर के जो MS साहब हैं उनसे भी अपील है कि ये जल्द अज जल्द मशीन ठीक करवाए, क्योंकि गरीब आदमी इससे फ़ायदा ले सके। खसरा और जल्दी बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात मुहिम 15 नवंबर से शुरू होगी। यूनियन काउंसिल सतह पर अवामी आगाही और तशहीरी पैगामात के लिए 15,000 का बजट यूनिसेफ अदा करेगा। पंजाब भर में बच्चों को खसरा और जल्दी बीमारियों से बचाव के लिए MR मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। EPI पंजाब ने अवामी आगाही और तशहीरी पैगामात के लिए मोबाइल माइकिंग की हिदायत की है। गली मोहल्लों में तशहीरी बैनर्स आवेजा करने और ऐलानात करवाने के लिए 15,000 का बजट मंजूर किया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का रेल बाजार और मंदिर बाजार का दौरा। तजावुजात के खात्मे के लिए दुकानदारों को कल तक वार्निंग, रेट लिस्टों को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमला के हमरा मंदिर रोड और रेल बाजार का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों को तजावुजात का सबब बनने वाले सामान को फौरी हटाने का हुक्म दिया और कहा दुकानदार अपना सामान दुकान की हदूद में ही रखें। बाजारों की कुशादगी के लिए म्यूनिसिपल कमेटी रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन करेगी। मंदिर रोड का विजिट किया और बाज़ार में जो कुछ तजावुजात थी उनके हवाले से मैंने उनको वार्निंग्स जारी की हैं दुकानदारों को, ठेले वालों के वो जो है ना बाज़ार में मौजूद नहीं रहेंगे ताकि आवाम के गुजरने के लिए कन्वीनियंस हो। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कल से एंटी तजावुजात स्क्वाड तजावुजात का बायस बनने वाला सामान कब्जा में लेगी। सफाई पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। मेरा मेन फोकस यही है कि शहर के अंदर जो है वो सफाई होनी चाहिए और कूड़ा करकट जो है कहीं पे भी बाज़ारों के अंदर गलियों के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। मैं TMA वालों के साथ भी डेली जो है इसके ऊपर मीटिंग्स करता हूं, उनको डायरेक्शंस जारी करता हूं। मोहम्मद आसिम जावेद ने अमला को हदायत की कि बगैर किसी तफरीक के तजावुजात का खात्मा किया जाए, किसी को कोई रायत ना दी जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस हद तक मौसर काम कर रही है, कहीं कूड़ा करकट तो मौजूद नहीं। जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के दौरे सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सफाई सुथराई और इंतजामात का जायजा लिया। DC ने D टाइप और समनाबाद के इलाके भी चेक किए। सफाई के हवाले से पार्क्स का भी दौरा किया। सेशन जजेस झंग समेत पंजाब भर के स्कूलों में नाजरा कुरान की तालीम की मॉनिटरिंग करेंगे। नाजरा कुरान की स्कूलों में भी करेंगे। झंग समेत पंजाब भर के स्कूलों में नाजरा कुरान की तालीम की मॉनिटरिंग सेशन जजेस के सपुर्द कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अहम मरासलात जारी कर दिया। 15 नवंबर से एजुकेशन अथॉरिटीज के CEOs को मुतल्लिका जिला के सेशन जज को रिपोर्ट भिजवाएंगे। फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी सिफर, पोल खुल गया। रवां साल 1847 केसेस में मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए। पुलिस एक को भी अदालत में पेश न कर सकी। मजिस्ट्रेट्स और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की अदालतों में 1847 केसेस में मुल्जिमान को अदालती इश्तिहारी करार दिया गया। सर्विस एडवोकेट हाई कोर्ट, यहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं। ये थाना जब 87-88 की कार्रवाई करता है तो उसके बाद वो जो मुल्जिमान होते हैं जो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाते हैं
कुछ का तो सियासी असर रसूख होता है, वो ऐसे ही आते हैं थानों में, ऐसे ही निकल जाते हैं वापस विदाउट एनी बेल फैसिलिटी, और कुछ का तलक पुलिस पार्टी से दोस्ती याराने होते हैं जो आईओ के पास बैठ के चाय पी के जाते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि कुछ स्केप कर जाते हैं, वो मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं। अब इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी ये जिम्मेदारी है, अगर इन्होंने 87-88 की कार्रवाई की है तो उनको ये एक्ट अपॉन करें, उनको पकड़ें। और दूसरा ये कि अदालतों में जो 512 की कार्रवाई होती है, जो अदालती मफरूर होते हैं, अब जो लिस्ट बता रहे हैं 1900 समथिंग है, तो ये इन पे एक्ट अपॉन करवाना भी अब जज ने तो नहीं जाके बंदे पकड़ने, ये पकड़ने तो एडमिनिस्ट्रेशन ने है, ये इंतजामिया ने है। तो ये हमारे आरपीओ सीपीओ को इनका जो अपना अमला है जो थानों में, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर बंदा जो है अपने ही हिसाब से काम कर रहा है और कानून का कुछ भी पास नहीं कर रहा। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1112 शहरियों को इब्तदाई तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। जंग समेत पंजाब भर में खुसूसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। जंग समेत पंजाब भर में रेस्क्यू 1122 ने शहरियों को फौरी इब्तदाई तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। एप्लीकेशन के जरिए शहरी अपने मोबाइल से इमरजेंसी सूरत हाल में रिपोर्ट कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने एप्लीकेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मददगार करार दिया। रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अमीन का कहना था, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुतासरा शहरी की लोकेशन बासानी ट्रेस हो सकेगी, जबकि गलत मालूमात फराहम करने वालों की शनाख्त भी मुमकिन हो सकेगी। ये उसी तरह से बिल्कुल काम कर रही है जैसे उबर और करीम का तरीक़ाकार है, यानी आप इस ऐप के ज़रिए अगर रेस्क्यू 1122 को कॉल करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो रेस्क्यू कंट्रोल रूम में चली जाएगी और आपको भी इसी तरह से पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस कितनी दूर है या वो कहाँ पे आ रही है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इमरजेंसी हेल्पलाइन पर जाली कॉल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर राना अब्दुल सत्तार और नायब सदर मलिक इमरान खलील का दौरा फैसलाबाद। वेस्ट पंजाब रीजन के दफ्तर में दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा हुकूमत के इकदाम को काबिल सताइश करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर पीटीआई वेस्ट पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना जावेद अशरफ, पीटीआई ट्रेडर्स विंग वेस्ट पंजाब के सदर अब्दुल्ला दुमर, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद हयात कमोका, कलीमुल्ला कमोका समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। आतिफ मुनीर की मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और खुसरो बख्तियार से मुलाकात। सदर चैम्बर ने एसएमई सेक्टर पॉलिसी पर अपने मुतालबात पेश किए। सदर ईवान सनत व तिजारत फैसलाबाद आतिफ मुनीर ने मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद से छोटे और दरमियानी तबके के लिए कारोबार की हद को 80 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का मुतालबा किया। और बीमारियों से भरपूर पौधे फलों के मयार को मुतासिर करने लगे। गैर मियारी फलों से मुल्की बरामदात मुतासिर होने और अरबों रुपए नुकसान होने का इंकशाफ हुआ। फलों की पैदावार मुतासिर होने के बाद महकमा ज़राअत ने आगाही मुहिम भी शुरू कर दी, जिसमें काश्तकारों को बताया जा रहा है कि पैदावार बढ़ाने के लिए बीमारी से पाक पौधे लगाए जाएं ताकि अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। शुगर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की आगाही रैली। प्रोफेसर हिना आयशा, प्रोफेसर आमिर शौकत समेत डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत की। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से शुगर से मुतालिक शहरियों में आगाही के लिए रैली निकाली गई। प्रोफेसर हिना आयशा, प्रोफेसर आमिर शौकत समेत डॉक्टरों और मेडिकल के तलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर हिना आयशा का कहना था कि शुगर के मरीजों का तनासब 12% है। वर्जिश न करना बीमारी के बढ़ने की वजह है। पाकिस्तान है वो दुनिया में उन 10 मुल्कों में से है जिसमें डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीज़ का इंसिडेंस प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 12% लोग जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और जिसमें कि मेल्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। और पंजाब का जो प्रोविंस है उसमें 12% से भी ज़्यादा इसकी शरह है। तो आजकल जो हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के लिए वॉक का इनकाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया, उसका मकसद आगाही पैदा करना है कि हम अगर अपना लाइफस्टाइल में तब्दीली करें तो हम इस शुगर के मर्ज से बहुत हद तक बच सकते हैं। प्रोफेसर आमिर शौकत का कहना था कि शुगर की कोई अलामत नहीं होती, मगर एक साल में 2 से 3 बार अपना चेकअप करवाएं। मेडिसिन और इंसुलिन के जरिए शुगर के मरीजों का इलाज हो रहा है। दिल की बीमारियां, गुर्दों का मुतासर होना समेत दीगर बीमारियां शुगर की वजह से होती हैं। फायदा ये वाला है कि आप इस मर्ज को गोलियों के साथ और अपनी एहतियात के साथ बहुत तक काबू पा सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपको मालूम है कि इस मर्ज में सिर्फ ये नहीं है कि शुगर तेज़ होती है, उसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें बिनाई का जाना, पाँव का इन्फेक्शन होना,
पाँव का काटना, टांग का काटना, दिल का अटैक होना, मोटापा होना, बेशुमार असरात शामिल हैं। अगर किसी तरीके से हम लोगों को यही बता दें कि इब्तदाई स्टेज के ऊपर इसको तशखीस कर लिया जाए और उस मौके के ऊपर एहतियाती तदाबीर से इसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये सारा का सारा जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और अस्पतालों पे बोझ है शुगर के मर्ज की बिना पे, इसको बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। रैली में शरीक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना था कि मोटापा बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया भर में पाकिस्तान 10वें से चौथे नंबर पर आ चुका है। फास्ट फूड का इस्तेमाल और मुतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल ना करने से शुगर की बीमारी बढ़ रही है। चीज़ ये है कि मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ जिसमें गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, तो उसको इस्तेमाल ना करें और उसके साथ डेली 30 मिनट तक तेज़ कदमों के साथ वॉक करें और इसके साथ मुतवाजन अद्वियात का इस्तेमाल करें। किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप खुराक, वर्जिश और अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ शुगर से बच सकते हैं बल्कि इसकी बहुत सी पेचीदगियों से भी बचा जा सकता है। आगाही रैली मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलाइड अस्पताल तक निकाली गई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अखुवत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में कर्ज़ा हुस्ना की फराहमी के लिए तकरीब का इनेकाद। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का के इश्तराक से 35 लाख के आसान कर्ज के तहत चेक तकसीम किए गए। अखुवत की जानिब से कर्जों की फराहमी के लिए जामे मस्जिद गौसिया रिजविया महमूदाबाद में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसका इनेकाद सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का के इश्तराक से किया गया।